This is not the interaction for the examination, mind you. No, this is an association for life in general. You can reach out to me for your other concerns as well for career progression. We are more like friends here. We are more like, I want you to grow and become the best version of yourself. एक और बात किसी ने कही थी मेरे सीनियर ने कि नवजोत ऐसा काम करो कि दुनिया को तुम्हारी माँ के दूध पे नाज हो जाए। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ऐसा काम करो कि आपकी माँ के दूध पे दुनिया को नाज हो जाए। दैट लेट्स लीव इट एट दैट। इससे ज्यादा बोलने को कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर, गुड डे, बाय। Thank you, sir. थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you, sir, for the session. जय हिंद। Define the word intelligence for me. So intelligence is information, sir, about something. Intelligence is having From the world of espionage I'm talking about, not the general parlance. What is intelligence from the security perspective? from the security perspective, sir, it is the insights or inputs from our adversaries or something that can help us build up our analysis or understanding onto something and use it to our advantage. Okay. That's Are you what I missing something? understand. Are you missing something there? Not that I'm aware of, sir, but I can add it to my understanding. Okay. So you said it's the credible information about our adversaries or something of that sort. That's what you meant? Yes, sir. Okay. So let me give you a situation. So we have a credible input about some insurgent cadres, Ulfa cadres, crossing over from Myanmar near the Fangsu Pass. Okay. And the intelligence agencies reported this incident to the operational agencies, the agencies that carry out the ops. It was reported on 25th of July, today. But that movement was supposed to have happened on 15th of July. Would this information be considered as intelligence? No, sir, this would not be an actionable intelligence Yes. because So we can. that's precisely my point. Sir. Intelligence is credible plus the most important part, timely information. Sir. If it's not delivered on time, it's not intelligence. It's just like yesterday's newspaper is like a piece of trash today, isn't Yes, it? sir. So that's the criticality of intelligence is the time of it. We were aware of what's going to happen in Kargil. Some of the intelligence officers did report the movement of the shepherds in that region. Shepherds saw some movement, some untoward movement, but that wasn't taken too seriously. That wasn't so. As things stand, Kargil war happened. 26/11 could have been averted. There were credible inputs, but not actionable. They were generalized. CIA may have shared, but then there are a lot of things that go behind the doors. We are not privy to those things. Only the people in the top ladder of the security architecture, उनको ही पता रहता है. So this is a little bit about that. Okay. Anyways. Especially geography, history, polity. I recently, after watching your YouTube session, or the one which you have organized, I started with a loose end book and went through the polity and in the Fair enough. yeah, and the most important thing is that there are some parts that are quite resemblance to the banking. That's the quantitative part, quants. In the quant section, there are some common syllabi. So as a result, I am getting some marks there in the test, but I am lagging in the GS and the current affairs. No worries. We will catch up with that. We'll catch up with everything. We'll work on various aspects. Majorly, we will focus on GS and current affairs because that holds the major chunk. वहाँ पे अगर हम focus उन 40 marks में अगर हम 35 नंबर ले आते हैं तो बाकी जो है इंग्लिश में, रीजनिंग, लॉजिक में हम shoot up कर सकते हैं. So that is also the approach. So wonderful. Welcome to the program, Shreyans, and Thank you, sir. we'll hope we'll work together and make this journey a success for you. Wonderful. Sure, sir. IB exam preparations. I have to show my parents in India we can do something good. कहाँ से आप? Where are you from? पंजाब सर, जलंधर. पंजाब तो जलंधर जी सर. कितों सर जलंधर. खाना घर वालों को कि सरकारी नौकरी करनी है.
नहीं सर, घर वाले जैसे बड़ा ब्रदर कह रहा है कि बाहर ये वो, हमारा ज्यादातर पंजाब का यूथ बाहर ही जा रहा है। I am तो disappointed because of that. Personally, that disappoints me. That really disappoints me. यस सर। तो आपका क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैकग्राउंड है कुछ? नो सर। ओके ओके, ये आप फर्स्ट टाइम तैयार करने आ यस रहे हो, ठीक है यस ठीक है, fair enough, fair enough. थैंक यू। See, this has been the trend that you talked about. That's actually very disturbing because Yeah. uh, people should move towards education and intellectual pursuits rather than finding greener pastures in other countries. Why not work in your own country and do something meaningful? So that is something actually I am really aghast about. And Yes, sir. even I I think sir, started my yeah, please. I think sir, Punjab has the most potential youth in the India. I think sir, but we were going abroad and doing some labor work over there. This is not good, Mhm. sir. Mhm. Not just Punjab, I would say every part. India has a huge potential, Punjab included. I Yes, sir. believe because I have served in various areas and I have friends from various places. Yes, sir. Some of them serving at various prestigious positions, and the idea is to put your heart and mind in the right place, and that is lacking. That drive is lacking. That is something that we need to ignite the fire in the youth. That is very Yes, important. yes, And sir. if you आप सबके लिए भी जैसे आज एक ओरिएंटेशन क्लास है, we have interacted, we have come to know about all of you diverse people from various backgrounds and passions, and all of you doing great in your lives. But I just want you to tell कि पढ़ाई सारी एक तरफ है, पढ़ाई is just a part of the process. पढ़ाई किस रूथलेसनेस से आप करते हो वो एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है. हाउ रूथलेस यू आर. I want you to commit for the next 2 months. Let's understand, and let's, if then from the past observations, we can assume that the exam is going to happen in September end. September end में आपका एग्जाम probably हो जाएगा. So you, from now onwards, you have, let's say, 60 days. Next 60 days, all of you should be working the hardest. आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्डवर्क करने की जरूरत है. Those of you who don't have any background in GS, क्योंकि मैथ्स वैथ्स फिर हो जाता है, बाकी चीजें हो जाती हैं, लेकिन GS में बेस बनाने में बहुत वक्त लगता है. GS is something that is very critical. Various subjects, polity, geography, economy, all of that, understanding of the concepts as well as various parts. Current affairs also. अब current affairs क्या होता है? When you study current affairs, in current affairs also you have to study relating some of it to the general awareness topics. अभी yesterday, couple of days back, you see a vice president had resigned. All right. Now, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट में, who was the vice president, or which of the vice presidents of India had resigned citing health concerns and not completing their full tenure except for death or other reasons. ठीक है. अब इसमें एक और सवाल क्या आ जाता है, once you have studied polity, जब आप पॉलिटी पढ़ चुके होंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि वाइस प्रेसिडेंट जब अपनी टर्म आधी छोड़ के जाता है तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगी वहां पे. What is the procedure? Will that, when, how quickly the elections will be happening, and what is that procedure? What are the articles that refer to that? When vice president comes into the picture, they may not ask the question about the vice president. They may ask the question about president, or for that matter, maybe the governor or the lieutenant governor. ठीक है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसको रिमूव कौन कर सकता है, हु कैन रिमूव इट. Now, our honorable Prime Minister, he is on a visit to UK. Are you guys following news? आप daily news follow करते हैं आप लोग? If not, at least go through the newspapers daily. Newspapers को at least आप brush up जरूर कीजिए. Go through them, get a drift of what is happening. There are various websites. For example, GK Today है, आप उसको देख सकते हो. Insights on India है, Insights on India. और न्यूज़पेपर पढ़ना है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से एक आप पढ़ लीजिए. ठीक है, रीड वन ऑफ दीज टू न्यूज़पेपर्स. और उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि हमारे पास टाइम कम है,
देखिए मेरा आपको ऑब्जेक्टिव अभी प्लान ये रहेगा कि जब तक हमारी डेट नहीं आती, आई एम अज्यूमिंग हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट, ऑल ऑफ यू डिवोट पर डे फॉर योर स्टडीज, कितने घंटे आप दे सकते हो वीक जो वर्किंग है? आई थिंक 5 days a week है। आई थिंक तजिंदर, व्हाट इज योर वर्किंग timeline? 5 days a week, and I think someone else who is working, Dhruv, what about you? So- You're 5 days a week? 6 days a week. 6 days a week. And you also, Tajinder? So mostly 5 days a week, but they used to like follow-ups on Saturday and Sunday too. Okay, So let's even though I'll assume you are, take okay, let's assume on you are Saturday, having that. Sunday, it would be around like 5:30 off, sir. Okay, it's a long duty. Anyways, what about others? Baki log are having full day to themselves. Most of you. So I assume for those who are working, आपने कोशिश करनी है कि वीकडेज में आपने 4 to 5 hours आपने पढ़ लेना है। क्लासेस के अलावा कोशिश करें कि 4 घंटे पढ़ लें क्लासेस के अलावा। वी विल ट्राई टू प्लान द क्लासेस इन सच अ वे कि क्लासेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी उस तरह से कि आपको बर्डन हो जाए, और वो साथ साथ में रिवाइज करते जाना है, क्योंकि हमने आज पढ़ लिया है, कोशिश करनी है कि उसको आज ही रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास से पहले उसको रिवाइज करके रखेंगे ताकि हमारा बोझ ना बने। तो वी विल प्लान इन दैट मैनर। एंड फॉर वर्किंग पीपल ओवर द वीकेंड्स, क्योंकि हर वीकेंड पे लोड नहीं होता है, वी अंडरस्टैंड कोई भी जॉब इतना लोड कर तो नहीं होता है। व्हेन यू हैव वीकेंड्स ऑफ, पुट इन 12 hours, पुट इन 12 hours ऑन द वीकेंड, बिकॉज 2 महीने की बात है, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं है। तो वीकडेज पे इफ यू पुटिंग इन 4 to 5 hours, दैट मेक्स इट 20, एंड हियर यू पुट इट 24, तो एवरेज 40 to 45 hours per week for those who are working. For those of us who have full time preparation time, who are preparing full time, I would advise every day 6 days a week. For you 6 days a week program क्या होगा? 6 Monday to Saturday for you guys would be 8 hours. You have to put in 8 hours. That's the bare minimum. I want you to maintain a diary from now onwards. Get a short notebook or any app you can use. I would advise don't use an app. एक छोटी सी डायरी रख लो, पढ़ने बैठते हो जब भी सुबह उठते हो डायरी पे लिख लो कि I'm sitting from 10 a.m. to 10:30 a.m. I studied. Regulate your time. This will make you accountable. आप अगर 10 मिनट की ब्रेक लेते हो, वॉशरूम जाते हो या बाहर जाते हो, वो 10 मिनट अकाउंट करो। यहाँ 10:40 ही लिखो। यहाँ कोई आपको पूछने नहीं वाला कि आपने 1 मिनट कम लिखा, या ये आपकी अपने आप से अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि आप जितना अपने आप से अकाउंटेबल हो जाओगे ना, दिन के एंड में आप देखोगे आज मैंने कितने घंटे पढ़ा। टुडे आई स्टडी फॉर 5 hours, देन नेक्स्ट डे यू सी टुडे आई स्टडी फॉर 8 hours, देन किस दिन होगा आई स्टडी फॉर 2 hours, फिर वो चुभेगा 2 hours, क्योंकि सामने दिखेगा आपको आपके नोटबुक पे या कैलेंडर पे कि यार आज तो मेरा बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस था, अब मेरे को इसको इम्प्रूव करना है, नाउ आई हैव टू इम्प्रूव इट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 week, from Monday to next Sunday, you will see that you should have clocked 45 hours. वो कैसे करना है वो आपको देखना है। एटलीस्ट 6 घंटे से कम तो नहीं पढ़ना है जिनको कुछ नहीं और करने के लिए, और जिनको जो वर्किंग है उनके लिए भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, 4 घंटे तो निकालने हैं उन्होंने भी। They also have to find out 4 hours, क्योंकि nobody is forcing you to do this. This is your choice, and once this is your choice, you have to put in that extra. In fact, आपको ये होना चाहिए कि हमें जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बीट करना है। हम ऑफिस में भी अगर लंच टाइम पे टाइम मिल रहा है तो हम गप्पे नहीं मारेंगे बैठ के चाय पे, टी ब्रेक्स में, लंच ब्रेक्स में। वी विल I'll tell you one thing. When I was in the corporate in my time, many years back, a decade back, I worked as a corporate consultant in the Tata Group. So my lunch breaks started early and ended late, but I was in the library. And then I would finish my work accordingly as well. So try to manage your stuff because it is your fight. आपको ट्रैवल टाइम, अगर ट्रैवल टाइम है ऑफिस से आने का, यूज द ट्रैवल टाइम ऑल्सो टू स्टडी। अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल है तो उसमें भी आप न्यूज, करंट अफेयर्स देख लीजिए, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो चलते फिरते देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए। जब आप बैठ के पढ़ते हैं तब आप प्रॉपर जो पढ़ाई करनी है, क्वांट सॉल्व करना है या आपको जीएस रिवाइज करना है, वो आप प्रॉपर उस हिसाब से करिए। गॉट इट? इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी क्वेरीज विद द शेड्यूलिंग ऑफ द योर स्टडी आवर्स? और संडे को आप थोड़ा जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं, संडे को आप ले लो 3 घंटे ऑफ।
4 to मतलब second half of Sunday can be taken off, थोड़ा light. So we have to refuel also. We are not machines. It is for working people also. अब थोड़ा सा later half of Sunday, maybe after, loosen up a bit so that you don't burn out. So work hard full week, and towards the end of that week, just try to build a little bit of resilience, a little bit of energy recuperate for the coming week. That is how we're going to do. Okay. Now coming to the syllabus. See, we have 5 sections. Let's talk about stage 1 first. Stage 1. इसमें हमारा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जनरल स्टडीज. ठीक है. जनरल स्टडी में वी विल स्टार्ट विद पॉलिटी. पॉलिटी में देखिए, अभी सिंस हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यूपीएससी लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड जिसने, जैसे अनुशील को भी मैंने बताया था लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़ी है पहले, देन आई वुड सजेस्ट ड्रॉप दैट आइडिया, फॉलो द क्लासेस. ठीक है, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत नहीं कर पाओगे. एक किताब आप सब लोग ले लो, या तो लुसेंट की जीके या अरिहंत की, उसको हमने रखना है अपने पास. दैट वन बुक शुड बी विद अस. ठीक है, इधर लुसेंट और ठीक है, दैट वी विल टेक वन. आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू शुड टेक ओनली वन. एक सब लोग डिसाइड करके एक ही बुक ले लो, ताकि वो फिर क्लास में कोऑर्डिनेशन में आसानी. तो लुसेंट ले लो या जो भी ले लो. तो उसमें हमने अभी क्या करना है, जैसे पॉलिटी है, ठीक है, जो क्लास के लेक्चर्स होंगे, अभी आपको क्लास के 2 तरह के लेक्चर्स मिलेंगे. वन, जैसे पॉलिटी, आई विल बी टेकिंग क्लासेस, आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस पॉलिटी. ठीक है, जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा आपको. इसके अलावा यू विल बी हैविंग एक्सेस टू, हाँ, ओल्ड एडिशन भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. उसमें कंटेंट वही होता है. करंट अफेयर्स तो वैसे भी हम अपडेट करेंगे. यू विल ऑल्सो गेट रिकॉर्डेड क्लासेस. अपार्ट फ्रॉम ये रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी आपको, कॉम्प्रिहेंसिव भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, दैट इज टेकन बाय एन आईपीएस ऑफिसर. ठीक है, those classes are taken by an IPS officer, Mr. Abhinandan. He has taken those classes. So you will get 2 classes for polity. All the subjects, mostly for all the subjects, you will get access to two types of classes. Ones that you will be taught in the class, and others that will be much more comprehensive in a way that for UPSC standard, जहां पे हमें डाउट हो रहा है हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं. गॉट इट. एंड जो हमें क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके हमने क्लास में नोट करना है. वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, सो दैट वो नोट्स हमने कब यूटिलाइज करने हैं, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए. ठीक है, सो दोज नोट्स वी विल बी ट्राइंग टू रिवाइज क्विकली, बिकॉज वी हैव 60 days. वी आर प्लानिंग फॉर 60 days. तो हमें इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है और उनको रिवाइज भी करना है. तो माई आइडिया विल बी, अगर एक हफ्ते में हमने जितना पढ़ा है, संडे को वो सब रिवाइज हो गया होना चाहिए. ठीक है, बाय द टाइम वी आर स्टडिंग इन द क्लास, यू हैव टू रिवाइज योर लुसेंट ऑल्सो. You read from the class and then you revise your Lucian. You read from the class, you revise from your Lucian. So we have concised our syllabus. That is how things are going to be. Okay. So polity is very critical. Polity आपका कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें polity सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. Understood? इसमें किसी को डाउट? Anyone having doubts in that? You can keep your mics on right now, because we are having a conversation. So anyone wants to pitch in with a thought? जब क्लास होगी तब आप म्यूट करेंगे. जब प्रॉपर हम क्लास लेंगे ना, तो तब हम वो म्यूट कर सकते हैं. अभी आपको कुछ डाउट है, साथ साथ में पूछ सकते हैं. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट, कमिंग टू हिस्ट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ कौन से टॉपिक्स में से हमें कितना पढ़ना है. अब हिस्ट्री में यू हैव 3 sections. You start with the ancient, then you have medieval history, then you have modern. अब देखो, टोटल आपके सवाल इसमें 20 आने हैं. तो हमें इसको उस तरह से पढ़ना है कि हम जो मेजर टॉपिक्स हैं, अभी आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मेजर टॉपिक्स क्या है ना, कहाँ पे हमें ज्यादा वेट डालना है. सो द मेजर टॉपिक्स हैं, वहां पे हम ज्यादा फोकस डाल के हाई हिट रेशो रखेंगे अपना, कि जहाँ हिट रेशो हाई है हम उसको फोकस करेंगे. तो एंशियंट में जैसे अगर हम बात करें, इन एंशियंट हिस्ट्री, के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पा भी कहते हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती, वर्ल्ड हिस्ट्री इज इन दैट इंपॉर्टेंट. आपको
जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें से पूछा जा सकता है ना। कंटेम्प्रेरी जो आपके इवेंट्स हैं, जो ट्रिविया आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का से ट्रिविया पूछ सकते हैं आपको कि रामानुजम वो कौन सी शिप में गया था। सो दोज थिंग्स यू कैन नॉट प्रिपेयर एट ऑल। देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू गिव इट टू द एग्जामिनर। कई बार क्या होता है यूपीएससी में ना, एक सवाल आया था, कुछ आई थिंक डांस फॉर्म पे आया था, किसी पे आया था, बच्चे उसी चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि इसी पे हमें अभी टॉपिक तैयार करना है। वैसा नहीं होता है। हाँ, आपको ये समझना है, आप हर एक टॉपिक को नहीं प्रिपेयर कर सकते। सक्सेस और फेलियर का रूल क्या है? ट्रस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, ट्रस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड अगर आप बेसिक्स, जो बेसिक्स है ना, इफ यू आर एबल टू डू द बेसिक्स, हमने इधर उधर भागने का हमारे पास वक्त भी नहीं है। हम जो बेसिक है हमें याद नहीं है। हमें अगर ये पूछ लिया जाए कि हमें जो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से आई है, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए, या हमारे शेड्यूल 7 में क्या है, व्हाट व्हाट इज इन शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें वो भी नहीं पता है तो फिर हम कहीं और भाग रहे हैं, तो डजंट मेक सेंस। ठीक है ना। अब हम हिस्ट्री की जहाँ बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन यू हैव जैनिज्म, उसके बाद यू हैव बुद्धिज्म, ठीक है, देन गुप्ता एज, अशोका, ठीक है, अशोका का जो टाइम था, हाउ अशोका धम्मा, उसके अशोका के जो जो पिलर एडिक्ट्स थे, कौन से एडिक्ट में क्या बात हुई है, कौन से वाले उसके पिलर एडिक्ट में उसका नाम देवनम पियादासी लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब उसकी बात करते हैं, मिलिंदा पन्हू। मिलिंदा पन्हू, आपने एक किताब का सुना होगा नाम, मिलिंदा पन्हू। You must have heard about the name of this book, Menander, Nagasena's conversation with Menander। ठीक है। सेल्यूकस निकोटर किसको कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या, किसको, कौन चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक्स को क्या, ग्रीक्स उसको क्या बोलते थे? ये छोटी छोटी चीजें हैं। दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट। अब मिडीवल में आ जाइए। मिडीवल में व्हेन यू टॉक अबाउट मिडीवल में, आपको दिल्ली सल्तनत की वो पूरी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, स्लेव जो डायनेस्टीज थी, है ना, तुगलक्स, खलजीज, है ना, वो पता होना चाहिए। आफ्टर दैट कमिंग टू द मुगल्स, मुगल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अब बाबर कम्स फ्रॉम दी फरगाना वैली, आपकी फरगाना वैली से, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उनका क्या ट्रांजिशन हुआ, अकबर की पॉलिसीज दीन लाई का क्या थी, उसने जो फतेहपुर सिकरी की सिटी सेटअप की थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। देन विच एम्परर फ्रॉम द मुगल regime he supported paintings, which did not। जैसे इसमें जहांगीर was the saint patron, he was the great patron of paintings। जब औरंगजेब का टाइम आया, in the times of Aurangzeb, he was a hardcore fanatic। So he kind of shut out all these literary things। उसने, उसका एक कहा भी जाता है, उसने बोला जितनी ये पेंटिंग्स है ना, इनको 100 फीट अंदर बरी कर दो, बरी देम 100 फीट डाउन। तो वो सिंबॉलिक था कि वो डेथ ऑफ पेंटिंग्स थी, डेथ ऑफ लिटरेचर था। ठीक है। अब फिर उसके बाद लेटर मुगल्स आए। उसके बाद आपका जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, ये जो कन्नौज को लेके, जिसमें राष्ट्रकूता थे, राजपूत है ना, राजपूत से, ये तीन उसमें डायनेस्टीज थी। फिर साउथ में आ जाइए आप, विजयनगरा किंगडम, सतवाहना किंगडम आपका, ठीक है। फिर साउथ में आपकी चोला डायनेस्टीज थी। ये छोटी छोटी संगम लिटरेचर, दीज बेसिक थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। गॉट इट। तो यहाँ पे हमने, अब इंडियन मॉडर्न, जो मॉडर्न इंडियन स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है आपकी, जो मॉडर्न इंडिया, अब उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें यू अंडरस्टैंड अबाउट द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। अब यूरोपियंस कौन से पहले आए थे? पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच कब आए? फ्रेंच सबसे लेट आए, पोर्टुगीज सबसे पहले आए, बीच में आपके डैनिश भी आए, ब्रिटिशर्स आए। ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757। ठीक है, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुई थी आपकी। That was also the defining. Now this battle defined who was to rule India. The battle of 1757 defined who was not to rule India, and the battle of 1764 was who was to rule India.
एक 1760 में एक जंग हुई थी, बैटल ऑफ वॉन्डिवाश। बैटल ऑफ वॉन्डिवाश, इसमें आयरीकूट एक इंग्लिश जनरल था, उसने डिफीट किया था फ्रेंच काउंट डी लैली। काउंट डी लैली। अभी मैं इसको घबराना नहीं है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ ये व्हेन वी टेक अप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद वैरन हेस्टिंग्स का टाइम आता है 1772 से 1785 86। उसके बाद फिर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम सुना होगा आपने, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम है ना, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। आफ्टर दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट सब्सिडरी अलायंस। फिर लॉर्ड डलहौजी का नाम भी सुना आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, जिसने हथिया ली थी पूरी, जो राज रानी ऑफ झांसी का भी वो जो गंगाराम उसके हस्बैंड थे, डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड था, फिर उसको वो हो गया, वो सारी चीजें हुई। फिर इसके पीछे फिर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी। राजा राम मोहन राय 1814 को उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्मो समाज आया। 1829 में दे रिमूव दी शारदा एक्ट आया था, फिर वो सती की प्रैक्टिस खत्म कर दी गई। देन हाउ ही रोट डिफरेंट बुक्स, गिफ्ट्स टू मोनोथीस्ट, डिफरेंट इंडियन और वेस्टर्न नॉलेज को इंटीग्रेट किया उन्होंने, किस तरह से एक नया थॉट लेके आए, ठीक है। देन ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर की तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका, उनकी एक वो बुक आती थी। फिर ब्रह्मो समाज का पार्टीशन हुआ, केशव चंद्र सेन, ठीक है। फिर केशव चंद्र सेन से ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी बना बाद में, ठीक है। डेट भी याद करनी है, डेट भी थोड़ी बहुत याद कर, इसीलिए चक्कर है ना। देखो, आप लोग उन बच्चों से compete कर रहे हो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में कितने बच्चों की सिलेक्शन होती है हर साल? 800 900, 8 to 900 पीपल, एंड रेस्ट ऑफ देम डोंट गेट सिलेक्टेड। अब उनको भी तो नौकरी चाहिए, वो क्या करेंगे? एग्जाम तो देंगे सभी। एक्चुअली मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आई थॉट मैं सेशन पोस्टपोन करता हूँ, बट देन आई थॉट लेट्स गो अहेड विद, माय थ्रोट इज रियली नॉट गुड। एनीवेज, तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे? आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ द आइडिया, याद करनी सर, सॉरी। डेट्स भी याद करनी है सर, क्वेश्चन आया था। हाँ, डेट्स भी याद करनी है, पूछा था आपने। तो देखो डेट्स, हाँ, यूपीएससी के कैंडिडेट्स की बात कर रहा था। तो उनके तो दाएं हाथ का खेल होता है, उनको तो डेट्स तो ऐसे भी याद रहती है, उनको कॉन्सेप्ट भी याद होते हैं, ठीक है। अब जिसने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ चुका है जो बंदा, इतनी मोटी किताब है वो, सबसे बहुत ब्यूटीफुल किताब है वो, कभी आपको सिविल सर्विस की तैयारी करो तो वो जरूर पढ़े, ठीक है। तो जो लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ चुका है, ऑब्वियसली उसके लिए पॉलिटी आसान होने वाली है, इजंट इट? तो हमें ये नहीं सोचना कि कौन 10 बार पढ़ चुका है, हमें ये सोचना कि हमने जो पढ़ा है हम उसको डिलीवर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हैव कंप्लीट फेथ इन व्हाट वी आर डूइंग। एंड जीएस में थोड़ा सा आई विल ट्राई टू फोकस कि जो आप क्लास सुनते हैं, क्लास पढ़ते हैं, कंप्लीटली अटेंटिव होइए। मतलब क्लासरूम का ये कि नोटबुक और पेन आपका पूरा होना चाहिए, टेबल चेयर आगे हो, प्रॉपरली आप क्लास में बैठ के जैसे ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही समझिए, तभी फायदा है। भजन नहीं सुनना है बस बैठ के। आज तो फिर भी चलो थोड़ा सा हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, आगे से क्या होगा, वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स आल्सो, ठीक है। जैसे आज ही मैं कुछ यूपीएससी के कैंडिडेट्स को भी आई टीच, तो आई वाज टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस। तो वो आपके चीजें आपके स्टेज 2 में भी काम आती। अब जैसे वो बच्चे पढ़ रहे हैं जीएस 2 3 मेंस के लिए, उनको तैयारी करनी पड़ती है ना। तो वो चीजें हमें, अब आप सोचोगे कि मैं स्टेज 2 की तैयारी स्टेज 1 के बाद करूंगा, वैसा नहीं होता है, साथ साथ में सब चलता है, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, माइंडसेट, थोड़ा सा इमर्सिव अप्रोच से लेके चलना है इसको, ठीक है। तो डेट्स भी याद करनी है, डेट्स इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे, कांग्रेस बनी 1885 में, 1885 में, ठीक है। वहां पे 72 डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स के साथ बनाई गई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की, उमेश चंद्र बैनर्जी तब वो थे। फिर उसके बाद क्या, कौन कौन से मेन लीडर्स थे? मॉडरेट फेज आया आपका 1905 तक, 1905 के बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, और 1919 के बाद दशा ही बदल गई, द एंटायर पिक्चर चेंज्ड, एंड वी हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हु हैड वॉक्ड द प्लैनेट अर्थ, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। He took over the reins of leadership 1920 से onwards, and how he perfected his techniques of non-cooperation and satyagrah.
truth and non-violence, and how we use those techniques, and how उसमें फिर बहुत सारी चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपकी. So do we have to grasp in depth concepts in history understanding? You can ask the question. If you have doubts, you can unmute yourself and ask the question. Don't type there. Shreyans, what do you want to ask? Sir, I wanted to ask that whether in case of in history portion, whether the concepts will be based on in-depth concepts or just learning the facts with the date or the subjects on which Oh, would suffice. I see. I never recommend cramming of dates. Dates should ऑर्गेनिकली आपको डेवलप होना चाहिए. ऑल्दो देखो 2 महीने बहुत कम है आपको पूरा वो करने की, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम चीजों को समझें. मैं रटवाने में बिलीव नहीं करता हूँ. मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जैसे अभी अभी मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर दी होगी, कुछ कुछ क्लियर आपको समझ आ रहा होगा कहानी, Yes, जो yes, मैं sir. बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मेरा मतलब है आपके दिमाग में कहानी बैठनी चाहिए. इफ यू हैव अ पिक्चर क्लियर इन योर माइंड, अब आपको पूरा पता है कि अच्छा गांधी 1915 में वापस आए थे 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है. आपको पता है इस बात का? प्रवासी भारतीय दिवस हर No, साल. sir. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? ये 2003 से शुरू किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस. 9 जनवरी बिकॉज महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रवासी. इंडिया के सबसे बड़े प्रवासी माना जाता है उनको. तो 9 जनवरी को आए थे. 2003 से लेके 2015 तक ये एनुअल किया जाता था. उसके बाद बाई एनुअल कर दिया, 2 साल में एक बार. ठीक है. अब लेटेस्ट शायद ये भुवनेश्वर में हुआ था जहां तक मुझे लगता है. आई थिंक लेटेस्ट दिस हैपेंड इन भुवनेश्वर. सिमिलरली व्हाट हैपेंड, गदर मूवमेंट हुई. ठीक है. तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट. अब कोमागाटा मारू इंसिडेंट आपको पता होगा, अगर यहाँ से शिप गई थी, फिर वो कनाडा से उसको रिटर्न कर दिया गया था, फिर वो कैलकाटा के पोर्ट पे बज में वहां पे कुछ लोग मर गए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी. तो ये चीजें हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना जब, तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी. फिर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कैसे आया इंडिया में. उसको टेररिज्म ऐसे ब्रिटिशर्स ने टर्म यूज किया, रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म कहेंगे उसको, जिसमें बंगाल में सूर्य सेन थे. ठीक है. प्रीतिलता वाडेकर, बीना दास. देन पंजाब में यू हैव भगत सिंह, देन अदर लीडर्स, Chandrasekhar Azad, Rajguru, then Bhattukeshwar Dutt, all of these people. Then Bhagat Singh, how he transformed the HRA. उनकी एक इंस्टीट्यूशन थी 1924 में बनी थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. उसको बदल के 1928 में भगत सिंह ने कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन. इनफैक्ट भगत सिंह इन हिज मेमोयर्स उन्होंने लिखा है कि इन माय अर्ली पीरियड I was a terrorist. Now I'm a revolutionary. और उन्होंने ये माना था कि इंडिविजुअल हेरोइज्म से नहीं कुछ बदल सकता, हमें एक समाजवाद लाना पड़ेगा, सोशलिज्म. He was impacted by कार्ल मार्क्स, लेनिन, वो उनको पढ़ते थे, तो उनसे वो चीजें चेंज हुई. फिर सुभाष चंद्र बोस सर. अब कांग्रेस वाज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. वहां पे सुभाष चंद्र बोस एंड पंडित नेहरू, दे वर टू पीपल who represented socialistic leanings, socialistic ideas within the Congress. Okay. Then Communist Party of India, then M.N. Roy का role 1934 में this was formed. फिर 1940 से लेके 48 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात होती है, अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, फिर आपके वेवल प्लान आया, फिर आपका जून 3 प्लान जिसको माउंट बैटन प्लान, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया होती. तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ लेनी. ओके. दिस इज अबाउट हिस्ट्री. आई होप हिस्ट्री का मैंने आपको तकरीबन कुछ आइडिया दे दिया है ना. संजय, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? Hello, sir. Yeah, what is your understanding since you... Sir, I have a doubt in history, sir. Like reformers, are they important for our exam? Like Arya Samaj, Brahmo Samaj, and or reformers, social reformers. Yes, they're absolutely important. And more than that, I think I forgot peasant movements, tribal movements. ठीक है ना, वो सब important है. कोल अपराइजिंग कहाँ हुई थी, मोपला रेबिलियन कहाँ हुआ था. ठीक है. देयर इज दिस रानी गडिनिलियो के बारे में सुना होगा आपने, फ्रॉम नागालैंड, रानी गडिनिलियो. ठीक है ना. हाँ सर, हाँ. पंडित नेहरू सर gave him... ब्रिटिशर्स के साथ मतलब Sorry? अगेंस्ट में फाइट किया था सर. yes. And there is a great warrior of Assam. आसाम को अखम भी बोलते हैं ना. हाँ सर. लचित बोरफुकन. हाँ सर, अगेंस्ट मुगल सर.
He fought. लचित बोरफुकन, द ग्रेट वॉरियर। तो ये सारी चीजें हमें, और कोशिश कीजिए अपनी आंख कान नाक सब खोल के रखिए। न्यूज डेली ना, न्यूज़पेपर को पलट जरूर लो। डेली आपने कोशिश करना है, अगर एडिटोरियल एक अच्छा आता है उसको रीड करो और पलट लो न्यूज़पेपर को, उसमें कुछ न्यूज आती है उसको दिमाग में रखो थोड़ा। ठीक है सब लोग, फॉर एवरीवन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमी। अब इस एग्जाम में इकोनॉमी का उतना रेलेवेंस नहीं है, हमें इकोनॉमिक में बेसिक्स पढ़ के जाना बस। वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इकोनॉमिक्स टू मच, वी विल फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल हेल्प अस आंसर मेजर आइडियाज ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज में भी रहता है। अब आपको मानसून के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, पासेस, ऑल ऑफ दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो बी नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए, अगर तो हमने वो लूसेंट वाली किताब से करेंगे, दूसरा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर आप रेफर कर लें 11th की, पर अभी खरीदिए मत, मैं बताऊंगा अगर आपको लेनी होगी तो। ठीक है, अगर हम लूसेंट से और मेरी क्लासेस से कंबाइन करके हो पाएगा तो हम उसको वैसे रखेंगे, क्योंकि हमें इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिपरेशन लानी है, इजंट इट। वी वांट टू फोकस मोर ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कल्चर का पोर्शन है। ठीक है, कल्चर के लिए यूपीएससी लेवल हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू फोकस एट द यूपीएससी लेवल। हम इसमें फोकस करेंगे मोस्टली ऑन मेजर डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, स्कूल्स ऑफ आर्ट, मथुरा, गांधारा, अमरावती स्कूल, देन जो वेरियस हमारे थिएटर्स हैं, उसको कोशिश करेंगे हम उसके की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर हम कवर करें। ठीक है, आई जनरली लाइक टू टीच इन मच मोर डिटेल, मुझे डिटेल में पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सुपरफिशियली, मुझे आई डोंट लाइक टू डू दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट मजा नहीं आता उसमें पढ़ाने का भी, बिकॉज आप चीजों को घुस के समझें तो दैट इज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। देन यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए, यूपीएससी के लिए तो आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पर शंकर आईएएस है, फिर पीएमएफ आईएएस है, इसमें आई वुड सजेस्ट हम विजन आईएएस का एक डॉक्यूमेंट उठाएंगे, पीटी 365, उसको हम थोड़ा सा सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। पीटी 365 ऑफ विजन, उसमें से जो मेजर इवेंट्स कवर हुए हैं दैट वी विल ट्राई टू कवर, बिकॉज वी हैव टू पिक अप थिंग्स दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। हमें सिर्फ ऐसे कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना, वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। ठीक है ना, मूविंग ऑन, साइंस टेक। साइंस टेक के लिए भी पीटी 365 ऑफ यूपीएससी, बट वी विल डू इट सिलेक्टिवली। यूपीएससी वाली डेप्थ में नहीं जाएंगे हम उसमें, बट वी विल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। डोंट गेट पजल्ड एंड टेरिफाइड, ये सब हो जाएगा, डरना नहीं है बस। ठीक है, ये सब हो जाएगा, साथ साथ में बस क्लास के करते रहना। हमें ऊपर से सुपरफिशियल एड्रेसिंग नहीं करना। some people what they will do is they will not go in this depth to teach you. My idea is, here I am going to take all the classes that's going to happen here. I'll be the one, and some other classes by some IPS IAS officers, they are only going to interact with you, so that's going to be the USP of the program. तो आपने कोशिश करनी है कि अगर डेप्थ में भी हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज साथ साथ में कर लेना। ठीक है, उसमें डोंट क्रिएट एनी डाउट्स इन दैट माइंड कि हम कर पाएंगे या आपको समझ आ पाएगा। आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन हमें डेप्थ में जाके भी पढ़ना है, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। ऊपर ऊपर से आप मूवी का ट्रेलर देखते हो तो आपको पूरी मूवी का पता चल जाता है? नहीं चलता है ना। आपको पूरी मूवी देखोगे तो कहानी पता चलेगी, उसमें फिर आपको कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो भी याद आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको आधी आधी चीज पता होगी, उसमें आप फिर मजा नहीं आएगा आपको। एफर्ट आपकी तरफ से ज्यादा होगा। अगर 2 घंटे की क्लास है तो 6 घंटे आपको उसको रिवाइज भी करना है, आपको किताब से भी पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट्स भी बनाने। ठीक। अच्छा, करंट अफेयर्स की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए हम 2 चीज करेंगे, एक तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, दूसरा ना
कोई एक हम कंपाइलेशन उठाएंगे, उसको सिलेक्टिवली करेंगे। कोई अरिहंत की आई थिंक 6 महीने की कोई मार्केट में आई होगी, आप में से कोई पता कीजिए, कोई 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की कंपाइलेशन आई है, हम इसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। वी विल डू 2 थिंग्स, लेकिन मेन विल बी व्हाट आई विल गिव यू। सेकंड इज वी विल पिक अप अ कंपाइलेशन, फिर उसको हम सिलेक्टिवली पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारा। बट प्रायोरिटी है हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ से करना है। तो जनवरी ऑनवर्ड्स वी विल डू, जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल गो पीछे ऑल्सो, ठीक है ना, वी विल डू एज मच एज पॉसिबल। तो इसके लिए एक अरिहंत की हमें एक कंपाइलेशन चाहिए जो 6 मंथ्स की हो, या जितनी भी आपको मिल जाए, लास्ट 6 मंथ, 6 to 8 मंथ्स की, कुछ भी मार्केट में अवेलेबल होगी, पिक अप वन कंपाइलेशन, वी विल डू दैट। क्लियर? जीएस और करंट अफेयर्स का you're okay with it, ठीक है ना? So major focus will be on GS and current affairs and strengthening them. For English, I don't think most of you will be having any problems as such. But English में we will try to discuss a few concepts कि जो चीजें हैं वो हम देखेंगे, and plus practice a lot. तो practice के लिए you can enroll in certain वो जो छोटे छोटे टेस्ट बुक वगैरह उनको आप enroll कर लीजिए। I think 200 to 300 में आपको वो मिल जाएगा, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। And I will also try to hand hold you on that, ठीक है? That will be the approach, क्योंकि इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है as much as practice, ठीक है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, आंसर गलत हो जाते हैं इंग्लिश में। आई थिंक यू कैन स्पीक एट लीस्ट। आपका ऑडियो तो चल रहा है ना एडमिन? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम? आई थिंक वी हैव नॉट इंटरेक्टेड एट ऑल। मिस्टर एडमिन, व्हाट्स योर गुड नेम? आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग इट। एनीवेज, तो उस गलती को ही तो अवॉइड करना ना। देखो इंग्लिश में अभी मैं किसी कैंडिडेट से बात कर रहा था, केविन से बात कर रहा था, या पेपर में हम ना 4 से 5 क्वेश्चंस अपनी गलती से गलत कर देते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस वी डू रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स। टेनिस कौन कौन देखता है आप में से? टेनिस देखते हैं आप लोग? टेनिस में एक कॉन्सेप्ट होता है अनफोर्स एरर का। अनफोर्स एरर समझते हैं? कि जहां अपनी गलती से हम पॉइंट दे देते हैं सामने वाले को। तो यहाँ पे एग्जाम में कुछ अनफोर्स्ड एरर्स होते हैं। सबसे पहला अनफोर्स्ड एरर क्या होता है? हम करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और हम करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं जबकि हमें वो आंसर पता होता है। ये सबसे पहले गलती, जल्दबाजी में दुर्घटना से देर भरी, है ना? तो थोड़ा वक्त लगा के रीड केयरफुली। सो दिस इज माय सिंसियर एडवाइस, रीड द क्वेश्चन आल्सो केयरफुली। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज आई हैव सीन। और दूसरा, इसमें तो OMR नहीं है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जनरली OMR में क्या होता है, हम एंड में कई बार भरते हैं तो एक ओवल ऊपर नीचे हो गया, उससे पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता है, पूरा सीरीज खराब हो जाती है। तो इसमें भी आई थिंक मैंने पढ़ रहा था उसमें नोटिफिकेशन में कि आपको रिव्यू पे नहीं छोड़ देने क्वेश्चंस। जो रिव्यू है उनको फाइनली चेक करके सबमिट भी करना है। इफ यू लीव द क्वेश्चंस इन रिव्यू दे विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, ये भी देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट, जंपिंग टू आंसर द क्वेश्चन क्विकली। अगर आपको सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सी अमेंडमेंट है, तो शायद वो पूछा हो म्यूनसिपैलिटीज का और आप PRIs का मार्क करके आ जाओगे। म्यूनसिपैलिटी का 74 है और PRIs का 73rd अमेंडमेंट है। तो आपको पता है, आपको आता भी है, रिवाइज भी किया है, बट मैंने एक्साइटमेंट में कि यार मुझे तो ये आता है, मैंने वो जल्दी मार्क करके क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है? ये नहीं करना है। क्लियर ऑन दिस? ये प्रैक्टिस इस चीज की थोड़ा हमने करनी है। तो ये जो फ्यू अनफोर्स्ड एरर है, से 5 सवाल हम बचा सकते हैं अपने, और यहाँ पे 1 सवाल की लड़ाई है, 1 नंबर से बंदा अंदर बाहर हो जाएगा। तो वो आधे नंबर से, अगर आपका कट ऑफ 70 गया है, आपके 69.75 नंबर है, ठीक है? तो अब वो एक क्वेश्चन कम गलत किया होता तो आप इन होते।
तो सही भी करने हैं और गलत भी कम करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए एक और मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको। हर मंथ के लिए जैसे आप एक A4 शीट ले लीजिए, ठीक है, ये A4 शीट है आपकी। आपने क्या करना है इसमें, एवरी मंथ, जैसे एक A4 शीट की 2 साइड है, एक साइड ये दूसरी साइड है। आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल हम जनवरी का पढ़ रहे हैं, इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपने कीवर्ड्स लिख देने, कीवर्ड्स लिखने हैं आपने। यू हैव टू राइट इन वेरी ब्रीफ। आपने जनवरी का कोशिश करनी है ऐसे 1 2 3 4 और मैक्सिमम यू यूज 5 और 6, इतने में आपने कर देना 1 महीने का करंट अफेयर्स खत्म। जो क्लास नोट्स दूंगा मैं, उसमें से भी, जैसे अगर आज क्लास हुई है, उसमें आपको PDF भी दूंगा जब महीना खत्म हो जाएगा उसका, जब वो पढ़ लिया, उसमें से आपने हर पॉइंट में से कुछ कुछ शॉर्ट लिख लेना है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं, आपस में वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो खुद करने से ज्यादा अच्छा है। एक महीने का करने में आपको एफर्ट नहीं लगेगा, वो अपने हाथों से किया हुआ वो दिमाग में रहता है। जब क्लास में पढ़ा, जब 1 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने जनवरी का पढ़ के कर दिया खत्म, अब आपने क्या करना है, वो जनवरी का करंट अफेयर्स की क्लास आपने सुन लिया, खुद से नोट्स बना लिए थोड़े बहुत, फिर आपने जो PDF थी उसमें से शॉर्ट में 1 से 2 पेज में उसको पूरा समराइज कर लेना। सिमिलरली फॉर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, अगस्त जितना मैक्सिमम जब तक एग्जाम होता है। साथ में जैसे जनवरी खत्म हुआ, जो हमारी अरिहंत की किताब होगी, उसमें तो मंथली नहीं होगा, उसमें मंथली नहीं होगा, उसमें हम सिलेक्टिवली आई टेल यू क्या क्या करना है उसमें। उसमें से कुछ बुक्स एंड ऑथर्स अगर हमें मिलते हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे, उसके अलावा अगर कुछ एड ऑन है, वो आपने या तो बुक में ही वहाँ हाईलाइट कर लो या इसमें शॉर्ट में ऐड कर लो। जब हम ये एक्टिविटी कर लेंगे 2 चीज़ें, तो हमारा करंट अफेयर्स में से कुछ नहीं बचने वाला है। हमने इसको जब ये 4 पेज हमने कर लिए, एग्जाम है हमारा, जैसे संडे को एग्जाम है, आज क्या है, फ्राइडे, संडे को एग्जाम है, तो हमने संडे, फ्राइडे, सैटरडे को वो अपने नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। करंट अफेयर्स हम सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं, 3 बजे एग्जाम है हमारा, तो सुबह भी हम करंट अफेयर्स रिवाइज करके जा सकते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने एंड में फिर वो बल्कि नहीं पढ़ना है, ऑल्दो वो भी कंप्राइज होगा, उसको और कंप्राइज करना है। ऑलवेज गो ऑन रिड्यूसिंग योर नोट्स सो दैट यू, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा ना, एफर्ट तो मारना पड़ेगा अगर कंपटीशन को स्टैंड आउट करना है। आई रिमेंबर आई वंस अपेयर्ड इन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जो उसमें आई थिंक 80 क्वेश्चंस होते हैं GS के, जनरल अवेयरनेस के, एंड आई अटेम्प्टेड दोज 80 क्वेश्चंस, ऑनलाइन पेपर होता है, इन लेस देन आई थिंक 11 मिनट्स, 10 से 11 मिनट के बीच में। और उसमें मेरे आई थिंक 62 मार्क्स सिर्फ GA में आए थे 80 में से। 72 73 अटेम्प्ट किए होंगे, आई थिंक 60 61 मार्क्स थे मेरे सिर्फ GA में, जनरल अवेयरनेस में। वो क्या था, ऑप्शन देखो, मार्क करो, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। टिक मार्क मतलब जो पढ़ा है तो पता है आपको कि कितना है, तो फिर वो मार्क करोगे, टाइम नहीं लगेगा, वो मल्टीपल रिविजन से आएगा। तो मल्टीपल रिविजन पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीजों के लिए सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, उसकी रिटेंशन भी बहुत जरूरी है। क्लियर, ऑलराइट, गुड टू गो विद दिस, आई एम श्योर यू गाइस गोना डू विद दैट। और एज फार एज लॉजिकल रीजनिंग and mathematics is concerned, we'll try to focus on as much practice as possible. इसमें practice is the key, speed is going to be the key. और हमने लाने हैं 70 नंबर, अब हम लाएंगे कैसे, how are we going to get it? GS 20 marks, current affairs 20 marks, English 20 marks, logical reasoning 20 marks, quantitative aptitude 20 marks. हमें
100 में से लाने हैं लेट्स अज्यूम 70। तो इस जीएस में और करंट अफेयर्स में वी हैव टू गेट बिटवीन 30 to 35 मार्क्स शेयर। इंग्लिश में तो मैं कहता हूँ 20 में से 20 नहीं लाए तो मजा नहीं है। इंग्लिश में तो लाने चाहिए, इंग्लिश आसान होती है, उसमें कोई एंटोनिम सिनोनिम कोई उल्टा पुल्टा पूछ लिया तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो उसमें इन दोनों में मिला के 30 से 35 इधर भी आने चाहिए। और क्वांट में मैं कहता हूँ 10 से 15 के बीच, 10 से 12 आप 10 नंबर ले आओ क्वांट में और इधर जोर लगा दो, ठीक है ना। जिसका क्वांट अच्छा नहीं है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, अदरवाइज भी क्योंकि टाइम नंबर क्वांट का, आप क्वांट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या करंट अफेयर्स के, आपको नंबर एक ही मिलेगा एक क्वेश्चन का, क्वांट वाले का ज्यादा नहीं है नंबर। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। स्ट्रैटेजी ये होनी पड़ेगी हमारी, हमने इधर इतनी रिवीजन की होगी जीएस और करंट अफेयर्स में, और इंग्लिश को भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, जीएस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये 3 हमने सब्जेक्ट कर देने हैं, 20-25 मिनट में खत्म कर देना है इसको, 20-25 मिनट में खत्म कर देना है इसको। फिर अगले लॉजिकल रीजनिंग के लिए दे देंगे हम 15 मिनट और, कितने हो गए 40 मिनट। अब क्वांट को देंगे हम 20 मिनट ही, लेकिन क्वेश्चन उसमें 10 ही होंगे। क्वांट टफ होता है, क्वांट में टाइम लगता है, एग्रीड। उसमें हमने अपने आप को 15 से 20 मिनट देने हैं, चाहे हम 10 क्वेश्चन करके आ जाए, उसमें 10 क्वेश्चन हमारे सही हो जाए उसमें। तो ये हमने दिमाग लगाना। एक और चीज होती है एग्जाम में टेंडेंसी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वी बिकम इमोशनल विद द क्वेश्चन, कि अब मैं इसको सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा, वो गलती नहीं करनी है। एक हमेशा ध्यान रखना है क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में पर्टिकुलरली 30 सेकेंड से ज्यादा अगर लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1 राउंड में ही करना है पेपर। आई थिंक 1 राउंड में डिपेंड करता है ना आपको कैसे आप, अगर सीक्वेंस सेक्शंस में आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली 1 राउंड में ही करना। आप इंग्लिश रीजनिंग लॉजिक आप दोबारा वापस जाने का टाइम नहीं होगा आपके पास, अनलेस आप एक आधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो जिसमें कंफ्यूजन है। अब इंग्लिश लॉजिक रीजनिंग आप कर रहे हो, मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि 20-25 मिनट में उसको खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश इट। अनलेस कुछ जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप लास्ट में, अब क्वांट को आपको आपने 20 मिनट दिए, लास्ट के आप 2 से 3 मिनट रख सकते हो, और मे बी लेस देन 5 मिनट्स यू कैन कीप फॉर दोज क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, सीए एंड जीएस। वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन भी लेस देन 5 होने चाहिए जो आपने छोड़े कंफ्यूजन, उनको मार्क करके रखा है, तो वो आपने जाके क्विकली एक बार सोच के रिव्यू करना है उनको, इधर भी टाइम नहीं लगाना। तो ये प्रिपरेशन एक तरफ होती है और प्रिपरेशन की एग्जीक्यूशन एग्जाम में एक तरफ होती है, तो ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करके चलनी है। I'm sure you now get some idea of how we are going to approach and what has to be our strategy going forward. अब किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? Yes, sir, I have a question, sir. Yes, Tushar, please go ahead. Sir, जैसे इतना सारा syllabus है, will we get enough time to revise? Because revision is very important. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Sir, पेपर डिफिकल्ट आता है तो भी 70 मार्क्स लाने हैं। देखिए कट ऑफ क्या होता है ना, कट ऑफ एग्जाम के लेवल से डिसाइड होता है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये यूजुअली व्हाट वुड बी द टाइमिंग फॉर आवर क्लासेस। Timing, I think today also we were having in the evening, we can have in the evenings. What is the most suitable time to everyone? सबके लिए क्या suitable रहेगा? I can also see my schedule according to that. What is the most suitable time for all of you for classes? 8:30 what? Morning? Morning won't be possible. Sir, if Mhm. I wanted to say that if early morning it will be fine, but Early morning will be a little difficult. Early morning or even after 7. I think we'll have after 7 in the evenings. 7 बजे के बाद कर लेंगे शाम को, ठीक है? So that working people can also attend, और दिन में आप या इवनिंग कर लेते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? 7 o'clock probably, let's keep it at 7, and so that थोड़ा ट्वीक, कोई फिक्स्ड वैसा नहीं रहेगा कि किसी का कुछ इमरजेंसी आ गया है कुछ, तो 7 o'clock we'll keep it. Morning won't be possible because there are other commitments, तो we'll keep it in the evenings, ठीक है? हाँ, और आपका सवाल था कि हम कैसे रिवाइज करेंगे।
तुषार, आपका बैकग्राउंड है कुछ जीएस वगैरह में पहले? नहीं है? Sir, while I was preparing for CDS, then only I prepared. ठीक है, ठीक है, नो वरीज। Yes, sir. सी, सब हो जाएगा। देखो, हमने क्या सोच के चल रहे हैं, सितंबर में हमारा एग्जाम है, तो हम ये सबसे ज्यादा टाइम आपको जीएस में ही लगेगा ग्रास्प करने में। मैथमेटिक्स, रीजनिंग आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है ना। वो उसमें आपको ज्यादा, उसमें कुछ याद नहीं करना है आपको। हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का इतना बड़ा नहीं है। हिस्ट्री, इसमें टाइम लगता है। इसमें अगर आपको समझाऊंगा मैं तो वक्त लगेगा। अगर आपको मैं 10 क्लासेस में या 12 क्लासेस में भी पूरी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूं, दैट ऑल्सो विल बी टू लेस। आई डोंट वॉन्ट टू लिमिट इट टू क्लासेस। मेरा 70 लाने हैं। देखो, वो तो एक पेपर की डिफिकल्ट, हाउ टू रीड द क्वेश्चन फास्टली इन द एग्जाम, स्पेशली स्टेटमेंट वाइज इफ इट कम्स और इंग्लिश। सी, फॉर दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी की मैं कुछ क्लासेस लूंगा ना, जब कैसे कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आई टेल इट दैट इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी तब जब हम इंग्लिश पे आएंगे तब हम करेंगे। देखिए, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, ठीक है। अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए? स्टेज 1 70%, फोकस टिल द डेट इज रिलीज्ड। जब तक डेट रिलीज नहीं होती है, हमारा 70% ऑफ द टाइम शुड गो टू टीयर 1 एंड 30% टू टीयर 2 इंटरव्यू। अब उसके लिए क्या करना है वो बताता हूँ। टीयर 2 इंटरव्यू के लिए करना कुछ नहीं अभी। आपको एक तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। ये आपको करना है जब तक डेट नहीं आती है। जब डेट आ जाएगी हम 100% शिफ्ट कर देंगे। मतलब जितना भी आपका टाइम है, चाहे आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, 2 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, ये काम करो। और यूट्यूब पे वॉच गुड कमेंट्रीज। देखो, आप जब बात करो, इंटरव्यू पैनल को लगना चाहिए कि एक लर्नेड बंदा बात कर रहा है। वो आप ये नहीं कोशिश कर सकते कि जैसे इंटरव्यू के 1 महीना पहले, अब जैसे मैंने पिछली बार इंटरव्यू लिए थे, जब अराउंड 400-500 पीपल आई इंटरव्यूड फॉर द आईबी एग्जाम, इनफैक्ट some for the UPSC civil services also। तो वहां पे तो the quality of candidates is really good civil services में। some former servants, कोई IRS में है वो भी इंटरव्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है थोड़ी सी, बच्चों को ये होता है कि मैं अभी कैसे, सर मुझे बताओ, मैं मेरा 3 दिन बाद इंटरव्यू, मैं क्या करूं? अब 3 दिन पहले मैं क्या बता सकता हूँ? व्हाट कैन आई टेल? अभी बता सकता हूँ मैं आपको। अभी 6 महीने, जैसे अभी 2 महीने बाद अगर एग्जाम होता है, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके 2-2.5 महीने बाद आपका स्टेज 2 होगा, उसके 2-2.5 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यू हैव गुड 6 to 8 months फॉर द इंटरव्यू नाउ। अभी मैं बता सकता हूँ आप क्या करना है। अभी आप अपनी पर्सनैलिटी को शेप कर सकते हैं। आपको ये चीजें करनी है, पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना है। एक तभी आप वहां पे, आप बात करते ही पता चल जाएगा कि योर पर्सपेक्टिव विल बी sharpened there, your perspective will be more nuanced। You should be aware of what are the various geostrategic evolutions around the world. Now what happened in Iran and Israel with the conflict, you should know about the ramifications for India. What are the stakes for India? We are vouching to be the voice of the global south. How are we doing that? How are we keeping our foreign policy dehyphenated? Are we allied to a certain lobby, or are we exercising strategic autonomy? So these nomenclature, ये सारी चीजें आप gradually build up करते हैं, not in a few days। So these are the things that you should do till the date is released। इसके अलावा मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, इसको समराइज करें। 1 पेज रोज लिखें। राइट 1 पेज डेली। जो भी आप कुछ पढ़ते हैं एडिटोरियल्स में, अपने शब्दों में उसको लिखना शुरू कीजिए। आप बहुत गंदा भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाइए। अगले 6 महीने जब तक टीयर 2 नहीं होता और टीयर 1 की डेट नहीं आती, तब तक आप 1 पेज रोज लिखिए, ठीक है। उससे आपका माइंड शार्प होगा, आपको लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना लिखोगे उतना, जितना रगड़ा फिर उतना तगड़ा।
अब रोज जिम जाते हो तो 6 महीने बाद मसल बनती है ना, मेंटल मसल भी वैसे ही होती है, इंटेलेक्चुअल मसल भी वैसे ही होती है, ग्रेजुअली यू शार्पन इट. सो यू गॉट योर आंसर तुषार. हाँ सर, हाँ सर. ठीक है. तो what we will do is we will keep revising daily. We will keep revising daily. और देखिए ये सिलेबस जो सिलेबस है ये 2 महीने का नहीं है, ये साल का सिलेबस है, 6 महीने 8 महीने का सिलेबस होता है. ठीक है. यहाँ पे बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कुछ भी चीजें स्किप ना हो, अदरवाइज कोई पढ़ने का फायदा नहीं है. मैं आपको शॉर्ट टर्म फैक्चुअल बता के निकल जाऊं, मेरे को वो मजा नहीं आएगा. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू गिव यू द नैरेटिव. What is the narrative behind the concept? अब 1857 की रिवॉल्ट हुई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, खत्म. उसके पीछे भी तो कुछ है कहानी, वो भी तो पता होनी चाहिए ना. बट हम कोशिश करेंगे हम टाइम को भी बैलेंस करें और जितना रेलिवेंट आपको बताना है वो भी मैं बताऊं. तो दैट वी विल मेक एन एफर्ट. उसमें आपकी कोऑपरेशन ज़्यादा है कि क्लास के साथ साथ फिर आपने पढ़ना है फिर दबा के. लुशियन डी अरिहंत की किताब मंगा लीजिए आप सब लोग, एक वो किताब मंगा लीजिए. और करंट अफेयर्स के लिए अरिहंत की कोई 6 महीने या किसी की भी एक अरिहंत इज बेटर, जनरली इट इज गुड. 6 महीने की कंपाइलेशन, वी विल कपल दैट विद व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इन द क्लास. तो बोथ ऑफ दैट विल बी हैपनिंग. ठीक है. या एनीथिंग एल्स? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. सर जैसे किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे मेरा कोई पेपर आ जाता है बीच में, तो सर विल वी बी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस? या ऑल यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड क्लासेस. पर ये नहीं है कि रिकॉर्ड क्लास के चक्कर में फिर क्लास अटेंड नहीं करनी, उससे नुकसान आपका ही है, मेरा नुकसान नहीं है. क्योंकि रिकॉर्ड क्लासेस में क्या होगा, फिर पाइल अप होता जाएगा आपके. आप आपने आज की क्लास मिस की, कल की परसों 3 दिन आपको कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है मान लिया, तो चौथे दिन आपको ये 3 दिन के भी पढ़ोगे, क्लास सुनोगे, उस दिन वाली पढ़ोगे, तो वो लर्निंग आउटकम आपका रिड्यूस हो जाएगा. राइट. क्योंकि 4 दिन में एक दिन का खाना नहीं खा सकते हम. तो अनलेस देर इज एन इमरजेंसी वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम डेली डेली डाइजेशन अपनी इंप्रूव करें. हाँ वो चीज़ है, जो क्लास हमने पढ़ ली है हम उसको बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं वहाँ पे. उसको वो तो आपको सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, उसको आप देखते रहो, लेकिन रेगुलर क्लास मिस मत करो. ठीक है. राइट. और किसी को कोई डाउट? Yes, Tejinder, are you able to follow the idea that we're going to give? Yes, sir. Hmm? Sanjay, what about you? Sanjay is here. He's left. Yes, sir. Sir, no doubt, sir. So are you able to get the drift? Get the idea what we need to do? Yes, sir. Even if don't take GS for granted, because we should अपना strong weapon को और strengthen करना है, और अपने weak point को, जैसे आपका मैथमेटिक्स आप कह रहे हो कि मैथमेटिक्स इज अ ग्रे एरिया, तो मैथमेटिक्स पे आपने उतना ही काम करना है जितना आपको अफलोट रह सकते हो. क्योंकि 2 महीने में आई डोंट सजेस्ट कि आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे मैथमेटिक्स को अपने को, है ना. दैट Yes, शुड sir. नॉट बी द अप्रोच. ऑल्सो आपको एवरेजेस को प्ले करना है यहाँ पे. अगर आपका जीएस और इंग्लिश अच्छा है, जीएस और वो अच्छा है करंट अफेयर्स, तो ट्राई टू गेट इट क्लोजर टू 35, 40 में से 35 के करीब. और मैं इंग्लिश में कहूंगा आप लोगों को, इंग्लिश 20 on 20 होना चाहिए, अनलेस देयर इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. इंग्लिश शुड बी 20 on 20 और मे बी 17 18 19 की रेंज में. ठीक है. Okay. वो Okay, आपकी sir. इंग्लिश का क्या होता है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपका जो माइंड आपने, तो ये जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो है ना, थोड़ा सा ये भी आपको मदद करता है. सो दैट्स अबाउट इट. एंड get these books, get these 2 books, and rest we will start with the classes on Monday probably, because some of the students have requested that they have certain emergency, so you don't miss out on that. In the meantime, I would want you to do 2 things. Start with your daily newspaper reading. Do read your newspaper daily, and start जो किताब मंगा ली है आपने उसमें से पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलिटी एंड सम करंट अफेयर्स. ठीक है. हम पॉलिटी और करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे. करंट अफेयर्स हम साथ साथ में करेंगे ताकि आप वो उसको यू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. ठीक है. ठीक है. आर यू रेडी फॉर द ग्राइंड? Yes, सर sir. Yes, वन sir. मोर क्वेश्चन सर. या तुषार प्लीज. सर जो इसका
प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने का कहाँ से रहेगा सर? मतलब क्योंकि लास्ट ईयर पेपर्स तो बहुत कम है सर, क्योंकि आई थिंक सो 2 साल में एक बार ही आता है। लास्ट ईयर का देखो, वो भी आई थिंक मेमोरी बेस्ड ही होता है, कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता पाता ना, क्योंकि पेपर तो बाहर आता नहीं है। नहीं नहीं सर, आता है सर। इट इज लाइक योर आंसर शीट कम्स, तुम्हारे अच्छा, रिप्लाईज आते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन। बच्चों ने वो बार बार रिलीज की होती है वो। ठीक है। तो उसके अलावा आई थिंक कोई भी एक पोर्टल, आई थिंक टेक्स्ट बुक पे काफी ज्यादा सवाल है। टेक्स्ट बुक का पोर्टल है, हम वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एक पोर्टल उठा लीजिए, एनी वन पोर्टल कैन बी यूज्ड। तो उसमें वी सर कैन मतलब प्रैक्टिस। सर अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस जैसे कर लें ट्राई, हाँ कि हाँ। स्पेसिफिकली इसी चीज के लेकर? नहीं नहीं, क्वेश्चन किसी एग्जाम के थोड़े होते हैं। क्वेश्चन राइट किसी सर। एग्जाम के नहीं होते, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक जो रीजनिंग है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। वो मैं कहूंगा आप वीकली 3 से 4 इस तरह के सेशन प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मत दीजिए। अभी आप थोड़ा सा बेसिक्स को रिवाइज करिए, अभी जीएस और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिए, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे दीजिए। जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है वो क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पे फोकस करके स्टार्ट विद फ्यू प्रैक्टिस टेस्ट। स्टार्ट विद फ्यू प्रैक्टिस टेस्ट। पुराने हम रिवाइज करेंगे, लेकिन हमें स्पीड भी तो थोड़ी बिल्ड करनी है ना। तो जो भी आप टेस्ट देते हैं टाइम मैनर में दीजिए। ठीक है ना। दैट इज गोइंग टू बी द अप्रोच। कोई भी एक पोर्टल हम उठा सकते हैं, उसमें उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज अ गुड गुड आइडिया। टेक्स्ट बुक आई थिंक इज अ गुड, मतलब आई हैव नो अवर्जन टू एनी, कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है वैसा कुछ है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आपको आई थिंक एट अ वेरी मिनिमल प्राइस इट गिव्स यू आई थिंक प्रैक्टिस पेपर्स, है ना। दैट इज रीजनेबल थिंग। और बाकी आपने क्या करना है, रिविजन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सी, क्वांट और रीजनिंग में प्रैक्टिस इज द की। क्वांट एंड रीजनिंग में इंग्लिश, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश को तो मैं इतना इंपॉर्टेंस मानता भी नहीं हूँ। जीएस और करंट अफेयर्स, इसमें रिवीजन इज द की। इसमें अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है। और इसमें डिजास्टर हो सकता है, जीएस और करंट अफेयर्स में, अगर आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ के ही नंबर आएंगे। इसमें आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, और 20 क्वेश्चंस बेशक हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है इसका। यू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू कवर, और उसमें हमें नहीं पता ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। मैथमेटिक्स में अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपने पढ़ लिया, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। यू विल बी एबल टू सॉल्व मैथ्स रीजनिंग इज रिलेटिवली इजी, बट हिस्ट्री इज अ वाइडर सब्जेक्ट, पॉलिटी इज ह्यूज। तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू build competency in the key areas in those subjects, isn't it? Is that clear, Tushar? यस सर। Right? Any doubt? No, sir. All right, all right. ठीक है, we'll catch up on Monday in that case, and get ready for the grind now, and get ready to get your timetable in order, get your schedule in order, and try to put in 8 hours every day now. Try to put in 8 hours every day. न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? कौन कौन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है? Sir, I have a question, sir. क्या है यार, प्लीज गो अहेड। Uh, sir, when we are mentioning about newspaper, what exactly to focus on? अगर आपने बोला होगा तो शायद मैंने मिस कर दिया. नो, सी न्यूज़पेपर में एटलीस्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज रीड। जैसे फ्रंट पेज तो आप पढ़ोगे, उसमें आपको की चीजें तो ध्यान देनी है। फ्रंट पेज शुड बी, एंड देन यू स्ट्रेट अवे गो टू द एडिटोरियल सेक्शन। फ्रंट पेज यू गो टू द एडिटोरियल, एंड देन द बिजनेस पेज एंड द इंटरनेशनल पेज। ये जो मेजर चीजें। इसके बाद यू ब्राउज थ्रू द अदर पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज देयर आर सर्टेन न्यूज आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई ट्रीटी हो रही है, कुछ चीजें जो ऐसी होती है ना, जस्ट आई वुड नॉट वांट यू टू रीड थ्रू द एवरी आर्टिकल, बट रीड द हेडलाइंस ऑफ पेरिफेरल आर्टिकल्स। जैसे जो पेज 3 4 5 पे होता है, बिफोर एडिटोरियल एंड फ्रंट पेज, है ना, देर आर फ्यू लिटिल लिटिल आर्टिकल्स। वहां पे जस्ट रीड द हेडलाइंस, एंड मे बी सम एरिया इज इन न्यूज, सम प्लेस इज इन न्यूज। कोई मूवी रिलीज हुई है, उसके ऊपर सवाल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस मूवी अबाउट रामानुजम सम टाइम बैक, सो वो पेपर में आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। ठीक है। तो these are the things, I don't want you to dwell deep, but I just want to you to be observant of what is happening daily.
जो डेली हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ठीक है। वो एक आपको एंड में तो पढ़ना ही है करंट अफेयर्स, बट डेली जो आप पढ़ रहे हो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया टू गो अहेड, ओके। Thank और you. एडिटोरियल, अयान एडिटोरियल को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और आई थिंक राइटिंग ऑन दैट वुड बी अ गुड आइडिया, एन आर्टिकल अ डे, maybe 5 days a week you can do that. That will help you improve your articulation, isn't it? Sure, sir. Tushar, what about you? You reading some newspapers? Yes, sir. Actually, sir, it's been like थोड़े टाइम से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑफ दी, मतलब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं और मैं एसएससी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था. बट नाउ सर आई अगेन मेक a routine, sir. But इस चीज whenever I को was preparing for armed forces, then I used to read it daily, sir. Editorials, Express और हिंदू दोनों के. पढ़ लीजिए, उसको हैबिट को मत छोड़िए, वो आप कर लीजिए, ठीक है। Right, sir. हाँ, आईबी की नौकरी, मतलब सैलरी ऑल्सो विल बी हैंडसम, इट विल बी अ गुड सैलरी, प्लस the some perks are not quantifiable. I cannot share some of my experiences here. Some of my friends, they were posted on Myanmar border and they had to survive on rice and some water, some herbs. I was lucky enough to be posted in a headquarters, and I was serving more like an, you know, a DIG rank officer, because I had to attend those meetings with, you know, liaison agencies and lead intelligence agency meetings. I'm representing my district there. So I was lucky enough. I think the current IB chief, Shri Deka, he was my boss in Guwahati setup. So he brought me up from one station to the another, particularly because of my track record in training or something. I don't know what did he saw. So that was, for me, it was a good experience. May not be that rosy an experience for everyone, but I think if you have the flair for understanding of variety of things. In fact, I'll tell you one thing. I was amazed. My brother who served in the forge, he was amazed when I told him that I presented this research report on onion prices. So anyone would be amazed कि यार एक intelligence के बंदे का प्याज के दाम से क्या लेना देना है. So I did this research report and then I sent it to the MHN. That was well received and the findings were implemented also. So that's how spectrum is diverse, from dealing with the ulfa cadres to pyaz ke daam. I think it's pretty broad. So lot of mind to be used here. ठीक है ना, माइंड का आपका, तो माइंड न्यूज़पेपर तो पढ़ना है. अभी बच्चों से बात हो रही थी मेरी, कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि जिनको लास्ट बैच में ट्रेन किया था कि सर न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है रोज, सर जो आप बताते थे बहुत मजा आया, उसका फायदा हुआ है, और कुछ ऐसे राइटिंग में कुछ फायदा है, आप किसी भी टॉपिक पे लिख लेते हैं हम. तो वो मेरा आइडिया ये है कि आपको उस तरीके से तैयार किया जाए कि थोड़ा सा एफर्ट डालो यार, थोड़ा सा एफर्ट डालो. जीएस हो जाएगा, साथ साथ में क्लास के करना, और मैथ की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो. टेक्स्ट बुक की यार 200-300 की आती है, वो उसको ले लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है. ट्राई टू डू दैट, एंड वी आर हियर वर्किंग एज अ टीम, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू, कोई ऐसी मसला नहीं है. और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि भाई जो लोग थोड़ा सा डिजायरस हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में भी सोचो. थिंक बिग, think about, if you have the ambitions, do think this is one step, then think one step up. I'm putting that seed in your mind. Let it grow and sprout. Let's see what happens. Let's see over the next 2 months whether I can transform you into, you know, dreaming for bigger ambitions. Let's see whether I can do that for you, whether I can inspire you to even greater achievements in life, isn't it? That's my point, that's my idea. You may be taught by many other people at various other institutes or whatever, but my idea is, I'm not just a teacher here. I'm your friend. Uh, I want you to inspire you to greater achievements in life, because हमारे देश को ना भेड़ों की जरूरत नहीं है. हमारे देश को, we need warriors like हरी सिंह नलवा, जो शेर का भी जबड़ा फाड़ देते थे. तो यहाँ आज आपको शेर का जबड़ा फाड़ने की जरूरत नहीं है. अब गुरु गोविंद सिंह जी की बात मैं अक्सर बोलता हूँ, वो कहते हैं कि एक फारसी में वर्स है उनकी, चू कर उस जमा हर हील दर गुज़श्त, हलाल अस्त बर्दन बा शमशीर दस्त. उसका मतलब क्या होता है कि जब बाकी सारे रास्ते खत्म हो चुके हों, तब शमशीर उठाना हमारा कर्तव्य होता है. शमशीर तलवार, ठीक है. लेकिन
आज के ज़माने में शमशीर, वो शमशीर क्या होगी हमारे लिए? What is going to be that shamsheer? That shamsheer is the shamsheer of mind. In today's world, you need to sharpen this weapon. This is the most powerful weapon. दुनिया में भीड़ में चलते हैं लोग, आप भीड़ से अलग होना शुरू करो अपने। अब ये मत सोचो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मेरे को भी मत सुनो, किसी को भी मत सुनो। मैं तो ये बिलीव करता हूं किसी को सुनना नहीं चाहिए आपको। डोंट बी डिसोबीडियंट बट बी somebody who questions things, questions in a way, who has his own mind, who thinks beyond the ordinary things that are there in life. ठीक है ना, जो भी आप चीज कर रहे हो, because that is why we are humans. रूजो ने, जीन जॉकस रूजो, जे रूजो, उनकी एक स्टेटमेंट है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। Man was born free. We were not meant to be tamed. We were meant to think free. That free thinking should liberate us. That should be our idea in life. That should be our objective in life. And that when happens, the transformation of, एग्जाम को ना मीक अप्रोच से मत। एक और चीज है, पढ़ाई सब हो जाएगी, आप पढ़ लोगे, सब रिवाइज कर लोगे, पर एक कमजोर एटीट्यूड से एग्जाम को अप्रोच मत करो। एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, आप बड़े हो। यू आर बिगर देन द एग्जाम। एग्जाम कोई छोटी सी चीज है यार, बहुत छोटी चीज है एग्जाम। वो माइंडसेट, एक साइड में पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, दूसरी साइड में माइंडसेट एलिवेट करो। ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू रूम में, यू वॉक इनटू द इंटरव्यू रूम and then you see that the panel gets mesmerized by your presence. What a candidate. We want him. We should not miss him. That has to be the approach. ये build करना है हमने अगले 6 महीने, isn't it? चलो, मेरा गला खराब था और मैंने I have not stopped talking anyways. चलिए फिर मिलते हैं, आपको मंडे को मिलेंगे, मंडे 7 o'clock. The life story of Ravindra Kaushik is very inspiring and influential. Indeed it is. Indeed it is. I'll try to make a video of that if possible sometime. Ali Cohen pe, one video is going to come on Republic TV. I've shared a story on Ali Cohen. You know about Ali Cohen? Yes, sir, the greatest Israeli spy. Greatest spy. You must know, all of you. So I have shared some, some of my insights on Republic TV pe. You can go and watch them. ISI के कुछ intrigues हैं, ज़ियाउल हक के कुछ, तो वो I have shared on that. I think tomorrow probably it's coming. Ali Cohen पे, my narration of that story is coming on Republic TV. You can check it there as well. But anyways, ये तो peripheral चीज़ें हैं, अभी हमें एग्जाम पे फोकस करना है। ये चीज़ें आपने स्पेशल ऑफ देखा होगा, अभी रिलीज हो गया है, तो वो देखिए, बट इतनी रोजी नहीं होती है कहानियाँ थोड़ी सी टफ फाइट होती है, क्लोजर टू दैट, बट देन अगेन थिंग्स आर नॉट दैट, इतनी आसान नहीं होती वहाँ पे चीज़ें। ठीक है, हिम्मत से, एब्सोल्युटली। ठीक है, ओके, सी यू गाइस, सी यू इन अ कपल ऑफ डेज। जो मैंने बोला है वो थोड़ा सा कीजिए, अपना टाइम अलाइन कीजिए एंड गेट योर माइंड इन ऑर्डर। ठीक है, ओके देन, सी यू इन अ कपल ऑफ डेज। All the best. And whoever of your friends have not joined today, tell them, and whoever else you think can take advantage of this program, tell them to join. Let's have this meaningful interaction. And this is not the interaction for the examination, mind you. No, this is an association for life in general. You can reach out to me for your other concerns as well, for career progression. We are more like friends here. We are more like, I want you to grow and become the best version of yourself. That's the idea, isn't it? So that's the idea, that's the approach. And अपने आप को मेरे को एक और बात किसी ने कही थी, मेरे सीनियर ने, कि नवजोत, ऐसा काम करो कि दुनिया को तुम्हारी माँ के दूध पे नाज हो जाए। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ऐसा काम करो कि आपकी माँ के दूध पे दुनिया को नाज हो जाए। दैट, लेट्स लीव इट एट दैट। इससे ज्यादा बोलने को कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर, गुड डे, बाय। Thank you, sir. Thank you. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Thank you, sir, for the session. Jai Hind, sir.